Let us start the lecture now. We had started with the numericals of problems of impact, and now let us read this question. I had asked you to try this problem on your own. ये आपने ट्राई किया था क्या आशीष? आशीष, अतुल, भानुकृष्ण, किसी ने ये प्रॉब्लम ट्राई की थी क्या, जो कल करने को कहा था? एनीबडी? आशीष बताओ, नहीं किया तो नहीं किया बोल दो। नो सर, नहीं किया था। चलो, ये अभी भी आपको खुद ही करना है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, बट समहाउ a problem related to the same concept. Read this one, example 17.7. A ball is dropped from a height of 3 meters upon a 15-degree incline. इसका मतलब क्या है? एक inclined plane है जिसका inclination है 15 degrees, और एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया गया. So it will impact the plane here like this. Coefficient of restitution is given. Find the resultant velocity of the ball after impact. This is what you have to do. See, the ball will drop vertically down, and after striking the inclined plane, it will bounce back at some angle. तो अपने को ये नहीं पता कितने एंगल पे जाएगी. So how to solve such problems where one object is moving while the other object is a wall or a floor or an inclined plane? जैसे ये वाली प्रॉब्लम थी, ये भी ऐसा ही था, बस इसमें फर्क क्या था? बॉल को इंक्लिनेशन पे फेंका है और फ्लोर जो है वो हॉरिजॉन्टल है. अब इस प्रॉब्लम को टिल्ट कर लो, ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई ना, फ्लोर इज टिल्टेड, बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली. So these are the same type of problems where one of the objects impacting is moving and the other one is stationary or a big solid like the floor or the wall or an inclined plane. So what we have to do is we have to find the final velocity. Let us draw the figure in a systematic fashion so that we can solve it. I will draw the flow. (15°). Ball is dropped from a height of 3 meters, so it will come and impact the floor here. This is 3 meters. 3 meters height. Now, whenever an impact occurs with a floor or a vertical wall or whatever, let us say an impact with a surface. In that case, I had told you that the line of impact has to be taken in which direction. For example, this is the problem that I've given you. The first thing that to accomplish is to draw the line of impact. कैसे बनाऊं मैं? सर डायरेक्शन में कैसे बनेगी बताओ? परपेंडिकुलर बनेगी सर. परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं देखना है, प्लेन से एक डायरेक्शन आप बनाएंगे परपेंडिकुलर टू इट. दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, एक काम करते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट को अपन एक दूसरे कलर से ले लेते हैं. This is the line of impact, and
I had told you that the line of impact is preferably taken as the x axis. तो अब मैं इसको पॉजिटिव x बना लेता हूं, इसको नेगेटिव x बना लेता हूं. Now if this is the x axis, we don't even have to think about taking the plane itself as the y axis. So let us put this direction as plus y and this direction as minus y. ये अपने द्वारा अज्यूम की गई डायरेक्शन है, आप इसको पलट भी सकते हैं, इट्स योर चॉइस. ठीक है. Now the ball has hit the inclined plane at this point, and let us say that it bounces back with a velocity v. Final velocity इसकी ले रहे हैं अपन, and at some angle theta with the line of impact. x axis से theta एंगल पे इंपैक्ट हुई. अच्छा, अब अपन चूंकि इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, इंपैक्ट ऑकर्स बिटवीन टू बॉडीज, तो अपन एक बार एक काम करते हैं. लेट अस नेम दिस एज बॉडी नंबर 1 एंड द इंक्लाइंड प्लेन इटसेल्फ शुड बी नेम्ड एज बॉडी नंबर 2. ठीक है. इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ बॉडी नंबर 1, यानी कि ये वाली वेलोसिटी, आई एम गोइंग टू नेम दिस एज u1, or initial velocity of object 1, which is the ball, and therefore the v should be preferably named as v1, क्योंकि बॉल बाउंस होकर के जा रही है, बॉल को अपन ने ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1 इज v1. and similarly the angle at which the first object is moving should be theta 1. तो ये सारे अपन नोटेशन इतना परफेक्टली इसलिए ले रहे हैं ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं हो, एंड वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूले फॉर इम्पैक्ट एंड देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूले एज इट इज. वरना आप अगर अपनी मर्जी से नोटेशन ले लोगे तो फॉर्मूलों में फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार मैंने तो ये नोटेशन लिया है, फॉर्मूला मैंने ऐसे याद किया हुआ है. तो इसीलिए हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, दो ऑब्जेक्ट्स को पहले नेम करो 1 और 2, इनिशियल वेलोसिटीज को u से रिप्रेजेंट करो, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करो, फाइनल एंगल्स को थीटा से रिप्रेजेंट करो, इनिशियल एंगल्स को अल्फा या किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट्स योर चॉइस, जैसा आपने याद किया हुआ है. ठीक है. नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? आवर क्वेश्चन इज फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर इंपैक्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट निकालनी है. एंड इन डूइंग सो सिर्फ v1 नहीं निकालनी है आपको ये भी बताना है कि v1 का डायरेक्शन क्या है. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यू हैव टू फाइंड थीटा 1 आल्सो. So now you have a problem in which there are two variables. ठीक है. टू वेरिएबल्स अगर पता करनी है तो कितनी इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी? सर 2. तो दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी. ठीक है. ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट है कि ओब्लिक इम्पैक्ट है? सर ऑब्लिक. दिस इज एन ओब्लिक इम्पैक्ट. ठीक है. तो अब आपके पास में लाइन ऑफ इम्पैक्ट आ गई है. कैन यू यूज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एट योर एंड एंड जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ बॉल लाइन ऑफ इम्पैक्ट से कितना एंगल बना रही है. तो ये जो एंगल मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये बताओ कितना है. व्हाट इज दिस? ये 15 डिग्री दे रखा है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन 15 डिग्री. क्या ये 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा? से दिस इज 90 डिग्री. यस सर होगा. ये टास्क मैं आप पे छोड़ता हूं, कैसे भी करके पता करो कि ये कैसे निकाला जाता है. द बॉल इज ड्रॉपिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस इज गोइंग टू बी 15 डिग्रीज ओनली. ये भी 15 डिग्री ही होगा.
और ये मैं आपको नहीं बता रहा कि कैसे मैंने निकाला, आपको खुद निकालना आना चाहिए ये। दिस इज वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वी विल प्रोसीड विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ। डू यू नो द वैल्यू ऑफ u1? प्रॉब्लम में तो नहीं दी। प्रॉब्लम में बोला बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 3 मीटर्स, बस। तो ये जहां से ड्रॉप किया गया था और जहां टकराया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 मीटर्स है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर कैलकुलेटिंग u1। आपका क्या कहना है? यस सर। कैसे निकालेंगे बताओ? अंडर रूट सिर्फ टू हाइट जी दे एच। रखी है तो √2gh, वेरी गुड। ये मैंने आपको एक टाइम पे याद करने को भी कहा था जब अपन प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ रहे थे। एक और बार आपको याद दिला देता हूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो एग्जैक्टली h हाइट के बाद उसकी वर्टिकल वेलोसिटी √2gh के बराबर होती है। ये याद रख लेना हमेशा, ठीक है? तो h is 3 meters, u1 can be easily calculated as √2gh। जल्दी से कैलकुलेटर कोई एक जना यूज करो और बताओ इसका आंसर क्या है। व्हाट इज u1? 7.67 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 7.67 मीटर पर सेकेंड। 3 डेसिमल तक ले लेते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है? दिस इज द वैल्यू ऑफ u1। तो u1 अपन को पता है। अब अपन को ये दो चीजें चाहिए, दो चीजों के लिए दो इक्वेशन चाहिए। देखें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन, ठीक है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। अब याद रखो, देखो दिस इज ओब्लिक इंपैक्ट, एंड इन ओब्लिक इंपैक्ट when you use the formula for coefficient of restitution, it must be applied in the direction of line of impact only। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ऐसे नहीं लगा सकते कि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। नहीं, आपको इसमें वो दिशा की कंपोनेंट लेनी होगी जिस दिशा में लाइन ऑफ इंपैक्ट है। लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है आपका? एक्स डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन है? सर एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। सो यू हैव टू पुट अ सफिक्स ऑफ x हियर, v2x minus v1x divided by u1x minus u2x। this is the formula for coefficient of restitution now। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन को दे रखी है 0.8, ठीक है? so let me put this as 0.8 equal to 0.8। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 तो आपका इंक्लाइंड प्लेन है। कैन आई से दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और u2 will be 0, and there is no doubt that the final velocity of the ground will also be equal to 0? Can I claim this at the beginning itself? यस सर। तो अगर u2 और v2 यस सर। टोटली 0 हो गए तो आपका u2x, u2y, v2x, v2y ये सारे 0 हो गए। सही है कि नहीं भाई? जब वेलोसिटी 0 है तो उसके कोई कंपोनेंट भी सारे 0 ही होंगे, खत्म हो गई कहानी, ठीक है? तो अब इस नई इंफॉर्मेशन के साथ में अपन इस इक्वेशन पे आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं, आप लोग बताते जाइए। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.8 इक्वल टू v2x कितना है? 0। अभी अभी बताया, जब v2 ही 0 है तो v2x 0 ही होगा, माइनस v1x। v1x का मतलब अभी v1 अपन को पता नहीं है, ठीक है?
लेकिन ये देखो V1 जो है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विथ द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अभी मैंने ऐसा मान लिया है, तो क्या V1x को मैं थीटा के टर्म्स में कुछ लिख सकता हूं क्या, ये बता दो। V1 cos θ1. यस, यू कैन राइट इट एज V1 cos θ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय U1 की वैल्यू आपने निकाल ली है 7.672, but U1 is directed downwards. What is U1x? 7.672 cos 15 degree. प्लस या माइनस? Minus. माइनस, क्योंकि आप देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यो है और आपकी U1 नीचे को आ रही है और ये आपका 15 डिग्रीज है। जब आप इसका cos 15 करोगे तो U1 cos 15 इस डायरेक्शन में आएगी विच इज द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो U1 x इज इक्वल टू माइनस ऑफ U1 cos 15, ठीक है। आपको U1 की वैल्यू पता है, cos 15 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। सो क्विकली टेल मी, ये U1x को मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस U1 कितना है आपका, सॉरी अपन 9. यहीं पे निकाल लिया ना, U1 इज 7.672, तो माइनस 7.672 cos 15 माइनस U2x कितना है, Zero. जीरो, क्योंकि U2 जीरो है तो U2x U2y सब जीरो होंगे, इट इज जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन 0.8 इक्वल टू माइनस V1 cos θ1 अपॉन माइनस 7.672 cos 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब मेरे को एक फाइनल एक्सप्रेशन बता दो, V1 cos θ1 कितना है, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। सर 5.92। इट इज 5.93, ठीक है। यही है आपकी V1x, इसको अपन ने नोट कर लिया अभी। अब देखो दो अननोन है यहाँ पे, V1 अननोन है, θ1 अननोन है, और एक इक्वेशन आपने यूज कर ली। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी कैन यूज इज, अपने पास तीन इक्वेशन और हैं। ओब्लिक इंपैक्ट के आपने चार इक्वेशन सीखे हैं, हर ओब्लिक इंपैक्ट पे चार इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, ठीक है। यहां पर आपको दो ही यूज करनी है क्योंकि अननोन सिर्फ दो ही है, सिर्फ V1 और θ1 ही अननोन है। कौन सी इक्वेशन आप यूज करना चाहोगे, यू टेल। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वैलिड है ही, लेकिन उससे भी एक बहुत आसान इक्वेशन है। Perpendicular to plane value. यस, वी नो दैट परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है लाइन ऑफ इंपैक्ट के, ओब्लिक इंपैक्ट में उस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं होता, तो आती हुई ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी उस दिशा में थी, जाते वक्त उस दिशा में वही वेलोसिटी होगी। तो दैट मींस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट डज नॉट चेंज। तो अब देखो ऑब्जेक्ट तो एक ही है जो चल रहा है, बॉल, इंक्लाइंड प्लेन की तो कोई वेलोसिटी है नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सिंस माय वाई डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू line of impact, can I say
that the initial velocity of object number 1 in the y direction will remain unchanged and will be equal to final velocity of object number 1 in the y direction. ये सही है क्या? बस Yes, यही sir. है एप्लीकेशन. अब ये बताओ u1y का क्या मतलब है? u1y का मतलब u1 का y कंपोनेंट प्लस है माइनस है, क्या एक्सप्रेशन है ये आप देख के बता दो. u1y कितना है मेरा, इस फिगर में देख के बताओ व्हाट इज u1y. अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई, पूरी क्लास शांत है. क्या सर? u1y कितना है sin 15. U1 फिगर में देख के बताओ. U1 sin 15 15. डिग्री. क्या ये U1 u1 sin 15 है कि नहीं है? सर यही तो. यस सर. प्लस है कि माइनस sir. है? सर माइनस. सर माइनस. माइनस. So u1y is minus u1 sin 15 डिग्री. अब इसको नीचे ले जाते हैं अपनी नई इक्वेशन में. u1 की वैल्यू भी ले लेते हैं 7.672. So this is minus 7.672 sin 15 and this is equal to v1y. अब v1y को v1y की तरह ना छोड़ करके मैं थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? व्हाट इज v1y? V1 sin 15. v1 sin थीटा 1. भाई x एंगल, x के साथ में जो एंगल बन रहा है उस x डायरेक्शन में तो cos बन जाता है, तो y डायरेक्शन में उसी एंगल का साइन बन जाएगा. तो v1 जो है x के साथ में थीटा 1 एंगल बना रही है. और मैं आपसे पूछ रहा था कि v1 का y कंपोनेंट कितना है, v1y कितना है. इट विल बी v1 sin थीटा 1. बट इन दिस केस यू शुड नॉट पुट अ माइनस साइन, क्योंकि अभी आपको ना तो v1 पता है ना थीटा 1 पता है. तो जब तक पता नहीं हो आप उस पर माइनस साइन ना लगाएं, सिर्फ उसको v1 sin थीटा 1 ही लिखें. तो आई विल सिंपली राइट v1 sin थीटा 1. ठीक है. तो अब देखिए आप, v1 cos थीटा 1 है 5.93, v1 sin थीटा 1 है minus 7.672 sin 15. दिस इज योर v1 y. क्या इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप थीटा 1 और v1 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है? v1 sin थीटा 1 कितना आ रहा है जरा बताओ. माइनस डू दिस सर माइनस 1.99. माइनस 1.986 है क्या? यस सर. अब ये देखो, ये एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. v sin थीटा 1 है माइनस 1.986 और v1 cos थीटा 1 है 5.93. सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? अब कुछ बचा थोड़ी है इसमें. इससे आप थीटा कैसे निकालोगे बताओ? थीटा 1 कैसे निकलेगा इससे? How will you find theta 1 using these two? Sir, tan theta करके निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करें पहले दोनों इक्वेशन yes, को. sir. डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. v1 कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट tan थीटा 1 इक्वल टू. अब यहां पर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, डू Minus. नॉट इंक्लूड द माइनस साइन. बिना माइनस साइन के आप थीटा निकालेंगे. सो आई विल सिंपली पुट
1.986 डिवाइडेड बाय 5.93। अब इसका tan इनवर्स ले लूंगा, you should get your theta equal to 18.52 डिग्रीज। अभी तो ये पार्शियल आंसर आया है, लेकिन चूंकि मैंने माइनस साइन को गायब कर दिया था, नाउ आई नीड टू टेल इन विच क्वाड्रेंट थीटा वन इज लाइंग। अब आप ये मेरे को देख करके बता दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपके हाथ में है, इन दोनों के साइन आपके सामने दिख रहे हैं, इसको देख करके मेरे को बताओ कि ये जो थीटा वन आपने निकाला है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। It is in the fourth quadrant. Fourth Very quadrant, good. yes. Because this one is the y component and this one is the x component. और अगर आपका x component पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक वेक्टर तो ये रहा, और अगर आपका y कंपोनेंट नेगेटिव है तो दूसरा वाला यो बनेगा, और रिजल्टेंट जो है वो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर थीटा वन। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने यहां पर जो ओरिजिनली थीटा वन को अज्यूम किया था कि आपका v1 देखो आपके x और y के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में ही अपन ने बनाया था, लेकिन ये अपना तुक्का था, लेकिन अपना तुक्का सही था। सो your final answer should be expressed as theta 1 equal to 18.52 degrees, ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एंगल ऐसे नीचे को बनाया, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड पुट योर थीटा। अब v1 कैसे निकालेंगे बताओ। थीटा 1 मिल गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में से कोई सा भी यूज कर लो, जैसे कि थीटा 1 पता लग गई ना, 5.93 को डिवाइड कर दो cos थीटा 1 से b1 मिल जाएगी। तो यू नाउ नो द वैल्यू ऑफ b1 ऑल्सो। प्लीज चेक, थीटा तो अपना आ गया है, चेक द वेलोसिटी वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपका, अ वेरी गुड क्वेश्चन, और आरटीयू में आ भी सकता है अच्छे खासे वेटेज के साथ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, और कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछना आप। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 5 kg, तो ये रॉड जो दिख रही है आपको, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, 1 मीटर लॉन्ग है, सेंटर से हिंज तक 0.5 और सेंटर से नीचे जो फ्री एंड है वो 0.5। लुक एट दिस, ये हिंज है, हिंज का मतलब क्या है, ये डंडे को यहां से कब्जे के साथ में बांध रखा है, तो इसका मतलब है कि ये डंडा जो है अपने फ्री एंड से यों रोटरी मोशन कर सकता है, एक रिजिड पेंडुलम की तरह है ये समझ में आ गया क्या आपको। दिस रॉड कैन स्विंग अबाउट दिस हिंज पॉइंट ओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। एंड द मास ऑफ दिस वन इज 5 kg, इसका मास 5 kg है, and a ball is coming horizontally and is going to strike the center of the rod with a velocity of 9 meter per second. बॉल का मास 1 kg। Determine the angular velocity of the rod just after impact. Coefficient of restitution is given as 0.6. अब देखो, जहां पर भी रोटरी मोशन आ जाता है तो वहां पर आप बिना किसी शंका के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि क्या इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने की जरूरत है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपन देखें, ऑब्जेक्ट्स की नंबरिंग करते हैं। आई एम गोइंग टू पुट दिस ऑब्जेक्ट एज नंबर 1 and I am going to put this object as number 2. ठीक है, ये बॉल आकर के इधर स्ट्राइक करेगी सेंटर पे,
उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है. सो आई कैन सिंपली से u1 इज इक्वल टू 9. SI यूनिट है, कोई कन्वर्जन भी नहीं चाहिए. u2 कितना है? u2 का मतलब ये जो रॉड अभी सिर्फ लटकी हुई है नीचे, उसके सेंटर ऑफ मास की या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इनिशियल वेलोसिटी 0. कितनी है? 0, क्योंकि ये Zero. चल नहीं रही है. इट इज 0. टक्कर होने के बाद देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सब दे रखा है, यानी कि अच्छा अब सबसे पहली बात तो बताओ, ये सेंट्रल इंपैक्ट है कि ओब्लिक इंपैक्ट है? सर सेंट्रल. This is The a central central impact. impact. This is a central impact. And what is the line of impact? The line of impact is the horizontal line itself. ठीक है, तो सेंट्रल इंपैक्ट की बात हो गई. चलो बहुत अच्छी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है. तो अब सेंट्रल इंपैक्ट है तो इसमें एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. सबसे अच्छी बात है. और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला सीधे लग जाएगा. E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. ये 100% शर्तिया बात है. ठीक है, अब टक्कर होने के बाद में बॉल की क्या वेलोसिटी होगी और रॉड की क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर की वेलोसिटी होगी ये नहीं पता. और अगर पता चल भी जाए तो ये तो पूछा ही नहीं है हमसे. समझ रहे हो क्या पूछा है? डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. Angular velocity. तो आपको ये पता है कि रॉड जो है जैसे ही टक्कर होगी रॉड की, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी हासिल करने के बाद, पहले तो रॉड ऐसे थी वर्टिकल, यहां पर हिंच कर रखा है आपने, फिर उसके बाद ये रॉड ऐसे रोटरी मोशन में स्विंग होगी. सो द बॉडी ऑफ द रॉड विल चेंज इट्स डायरेक्शन लाइक दिस. तो अभी इस पॉइंट पे तो इंस्टेंटेनियस इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद में इस सेंटर की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस तरीके से. द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू चेंज आफ्टर अ मोमेंट ऑफ टाइम. लेकिन अपन को तो इंपैक्ट जब हुआ तब लगानी है इक्वेशन. तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई बाद में इसको कुछ भी होने दो, आई डोंट केयर. करंटली तो इसकी एक इंस्टेंटेनियस सेंटर की वेलोसिटी v2 मिलेगी, मेरे को उसी से मतलब है, और उसी को लेके मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बना लिया. एज सुन एज द इंपैक्ट ऑकर्स, द रॉड and its center of gravity will achieve a final velocity of v2 in the horizontal direction. जो बॉल इससे आकर के टकराई वो भी एक फाइनल वेलोसिटी हासिल कर लेगा. वी डोंट नो दैट, बट लेट इट बी v1. Initial velocity of ball was u1 and initial velocity of the rod was 0. तो ये तो मेरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बन ही गया. तो इसमें तो कोई एंगुलर फैंगुलर कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है. वी कैन 100% अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक बार अप्लाई कर देते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्या फॉर्मूला है? 0.6. ठीक है, 0.6 की वैल्यू दे रखी है. v2 अपन को पता नहीं है, छोड़ दो. v1 अपन को पता नहीं है, छोड़ दो. u1 पता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज द बॉल. Sir, 9 meter per second. इट इज गिवन एज 9 मीटर पर सेकेंड. तो इसको लिख लो, इट इज 9. क्या एक इक्वेशन सीधा ही बन गई आपकी? फाइनल sir. वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 9 into 0.54. 0.6 is 5.4. 5.4. इसको सेव कर लेते हैं अपन. भाई अब इसमें अपन को निकालनी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा था, तो कम से कम ये तो बन ही रहा है ना इक्वेशन, इसको तो बना ही लो. अब देखो इसमें आगे ट्रिक क्या है. ये लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन से एंगुलर वेलोसिटी रिलेट होगी कैसे आखिर? इस फिगर को देखना तब आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज द हिंज,
This is the rod. When the rod is made to rotate about the point O, which is the hinge, then we say that the rod achieves an angular velocity omega. But if you observe any point on the rod, any point on the rod has an instantaneous velocity of, let us say, v, which is a linear velocity. But the linear velocity and the angular velocity of rotation are always related if you introduce the radial distance from the hinge point. Now I can conveniently say that omega will always be equal to v divided by r, because v is equal to r omega. याद आई कुछ चीजें? Yes, Yes, sir. sir. तो अब अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है. आपने v2 जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिया, लेकिन वो कौन से पॉइंट पे थी? v2 is the final instantaneous velocity of the rod at its center of gravity. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका हिंज पॉइंट से कितना दूर है? 1 मीटर की पूरी रॉड है, तो कितना दूर है हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बोलो भाई. 0.5 मीटर. 0.5, हाफ. ठीक है, तो ओमेगा 2 कैसे निकलेगा? यानी कि अगर मैं v2 को फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूं, तो इससे रिलेटेड जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेट मी डिनोट इट बाय w2. ठीक है, ये कितना होगा? विल इट नॉट बी इक्वल टू v2 अपॉन r? एंड r इज ऑलरेडी नोन टू मी इक्वल टू 0.5. सही है कि नहीं है? Yes, sir. अब आई v1 की बात. चलो इसको तो मैं अब यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं. ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गया, इसको हटाते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये इक्वेशन बना था मेरा, v2 माइनस v1 इक्वल टू 5.4. बट माय प्रॉब्लम वाज कि v2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ओमेगा चाहिए, सेकंड ऑब्जेक्ट की ओमेगा. तो मैं बोलता हूं कि ठीक है भाई, ये आपकी पूरी रॉड थी, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी v थी, तो सेंटर से हिंज की डिस्टेंस को r मान लिया जाए, जो कि इक्वल टू 0.5 है. तो मेरा ओमेगा 2 या w2 विल बी इक्वल टू v2 अपॉन r. तो v2 को मैं लिख देता हूं. नाउ आई एम लुकिंग एट दिस इक्वेशन, आई विल राइट इट एज 0.5 टाइम्स ओमेगा 2. अभी मैं इसको ओमेगा ना लिख के कैपिटल W लिख रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, यू विल फाइंड आउट. ठीक है, माइनस v1 इक्वल टू 5.4. अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक टर्म तो रेडियन पर सेकंड में है, ये वाली, और ये मीटर पर सेकंड में है. ये भी अच्छा नहीं लग रहा. क्या मैं ये v1 को भी चेंज कर सकता हूं क्या? v1 क्या चीज है? ये आपका हिंज पॉइंट है O, ये आपकी रॉड है, और v1 टक्कर होने के बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी है. तो इसका भी कोई एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है क्या? आप बताओ भाई. बॉल तो रोटेट नहीं करेगी, बट कैन आई एक्सप्रेस इट इन some form of angular velocity and some radius? Can I do that? Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. जैसा मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का केस समझाया था, उसी तरीके से if I have a point O of observation and a particle is simply passing from its neighborhood, ये इसके पड़ोस से गुजर रही है एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, तो मैं तो सीधे ये देखूंगा कि भाई O से इस वेलोसिटी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसके डिस्टेंस नापो r. ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियसली मैं ये कह सकता हूं, दिस पार्टिकल which is not actually rotating but simply passing linearly from the neighborhood of O can be considered to have an instantaneous angular velocity also, and that instantaneous angular velocity will again be equal to v1 upon r. ये काम अपन कर सकते हैं, लेकिन ये एक क्षण भर के लिए होगी. अब जैसे ही ये पार्टिकल आगे को चला गया, फिर उसके बाद आपका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहेगी. बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, at the point when the object has just hit the rod, can I take this distance or not? तो अब Yes, sir. इसकी भी एक W1 बना लेता हूं मैं. तो V1 की जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्चुअली आपके रॉड के सेंटर पे स्ट्राइक करी, तो ये जो R है ये अभी भी 0.5 ही है, इसके लिए भी, बॉल के लिए भी R 0.5 है. तो मैं V1 को कैसे लिख सकता हूं? I can write V1 as some instantaneous W1, which is the angular velocity of ball, multiplied by R, or again simply equal to 0.5 into W1. ठीक है, अब इस चीज को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं. ये चीज हो गई 0.5 W2 minus 0.5 W1 इक्वल टू 5.4. अब इसको थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं अपन. 0.5 is common, so angular velocity of the rod minus instantaneous angular velocity of ball is equal to 10.8. सही है क्या? Yes, sir. ये देखो, ये प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ना होकर के अपने आप में एक स्टडी मटेरियल है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपने कितनी सारी चीजें सीखी. एक लीनियरली ट्रैवल करते ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना सीखा. एक ऐसा रॉड जो कि लीनियर ट्रैवल नहीं कर सकता, सिर्फ रोटेट कर सकता है, उसकी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी निकाली. आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर इंपैक्ट, यानी कि ये जो W2 है ये निकालना है आप. दिस इज योर ऑब्जेक्टिव. तो अपन को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रोटरी मोशन के लिए पता ही नहीं है. अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लीनियर मोशन के लिए लगाया, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाई उसकी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, फिर उस इक्वेशन के ऊपर रोटरी मोशन के इक्वेशन लगा के उनको एंगुलर मोशन में कन्वर्ट किया. दिस इज व्हाट वी हैव डन, राइट? तो अभी एक इक्वेशन तो पता लग गई जिसमें W2 minus W1 इक्वल टू 10.8 है. इसमें ये चीज पता करनी है आपको, लेकिन अब एक इक्वेशन से तो ये मिल नहीं रही, क्योंकि इसमें W1 नहीं पता आपको. यू डोंट नो व्हाट W1 इज, सो यू नीड अनदर इक्वेशन. अब जिस तरीके से मैंने इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाया था, कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन और नॉट? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. ये लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं इस प्रॉब्लम के लिए? ये बता दो आप. Yes, sir. ये कौन सी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes, sir. क्या लगता है आपको? भाई ऐसा है, what is the hindrance in application of conservation of momentum equation? The only hindrance is there should be no external force acting on the system, and currently your system consists of only two masses, the ball mass 1 and the rod mass 2. So is there any external force that is going to act when the ball collides with the rod? No, sir.
ऐसे अगर हल्के में सोचे तब तो नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि है, और होने के कारण ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहां पर ये प्रॉब्लम है। अगर ये रॉड सिर्फ हवा में लटकी हुई होती और कोई हिंज नहीं होता और ये बॉल में फेंकता और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे टकराता, तब मैं ये इक्वेशन लगा सकता था। I could have easily applied this equation, but I cannot apply this linear momentum conservation equation when the rod is hinged here. क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बॉल इसके सेंटर पे टकराएगी, ये हिंज जो है, जो कि हिंज का मतलब कब्जे, जो कि आपने छत से लटका रखे हैं या छत का हिस्सा है कब्जा। सी, लुक एट द फिगर। This is a part of the roof, and roof is connected to the wall is connected to the floor, and the floor is a part of earth. तो आप इस हिंज को अर्थ मान लो, समझ गए? अब जैसे ही ये बॉल इसके सेंटर पर टकराएगी, उसी क्षण ये हिंज जो है, ये इसके ऊपर एक रिएक्टिव फोर्स लगाएगी, and this reactive force is going to get applied on the rod. और जहां तक अपन इस बॉल और रॉड को एक सिस्टम की तरह कंसिडर करने की बात करें, जैसे ये रिएक्शन फोर्स हिंज ने रॉड पे लगाई, दिस रिएक्शन एक्ट्स एज एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड सिंस देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स नाउ एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट यू कैनॉट अप्लाई द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। ये इसीलिए नहीं लग सकती। अगर ये लग जाती तो अपनी सारी कहानी खत्म हो जाती। इसके अंदर वापस से आप U1 और U2 सारी चीजें सब लेकर के एक दूसरी इक्वेशन बना लेते, पहली इक्वेशन ऑलरेडी तैयार है, और फाइनली आप W2 निकाल लेते। सर हाँ, सर इसमें इम्पल्स मोमेंटम वाली लगा सकते हैं क्या? कौन सा? इम्पल्स मोमेंटम वाली। इंपल्स मोमेंटम वाली बिल्कुल लगा सकते हो। इंपल्स मोमेंटम वाली पे तो आपको कोई शक ही नहीं है, उसके लिए तो कोई कंडीशन देखना ही नहीं है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। वो जैसे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगता है कहीं पर भी, इंपल्स मोमेंटम भी कहीं पे भी लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंपल्स मोमेंटम के लिए आपके पास में यहां पर कोई टाइम का डेटा है क्या? बिकॉज No, sir. इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। तो जब तक कोई टाइम डेटा नहीं होगा तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन आप लगा ही नहीं सकते। अगर आप ये पूछो कि लग सकती है क्या, तो मेरा आंसर है 100% लग सकती है। लेकिन क्या लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम तो दिया ही नहीं है। इंपल्स कैसे निकालो? समझ में आ गया ना? तो अब क्या करेंगे? अब अपन ये कहते हैं कि भाई लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड नहीं है, इट इज नॉट कंजर्व्ड, तभी तो नहीं लगी ये इक्वेशन। ये इक्वेशन क्यों नहीं लगी? क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट द रिएक्शन फोर्स किक्स इन। नाउ व्हाट डू वी डू? फिर अपन ये पूछते हैं, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? एक ऐसी एक्सप्रेशन भी तो थी अपने पास, Yes, भाई sir. लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है इंपैक्ट के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है तो ये अपन नहीं लगा सकते। एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? I1 ओमेगा 1, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, प्लस I2 ओमेगा 2, यानी कि ये क्या हो गई? टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है? मस्ट बी इक्वल टू I1 W1 प्लस I2 W2। देखो, इसीलिए मैंने W कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था पहले ही, क्योंकि ओमेगा का कैपिटल और स्मॉल तो होता ही नहीं है। तो एक जगह पे ओमेगा लिख लो, स्मॉल ओमेगा का मतलब इनिशियल और कैपिटल W का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसीलिए किया था। ठीक है? नाउ यू नो। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन और नॉट? और ये भी मैं किसके अबाउट अप्लाई कर रहा हूं? आप देखो, चूंकि ये रोटरी के ऊपर है तो ये सारी चीजें मैं O पॉइंट के ऊपर कर रहा हूं। सो आई विल राइट IO1 IO2 IO1 IO2, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O और द हिंज पॉइंट।
अब इसमें देखो क्या होता है, ये इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगी जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे सिस्टम पे। गॉट इट भाई? लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की इक्वेशन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की इक्वेशन में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल होगी। तो अब वापस से देखें कि भाई रिएक्शन फोर्स तो इस केस में भी लग रहा है ना, हिंज का जो रिएक्शन है, ये रॉड है, ये पॉइंट ओ है हिंज, ठीक है। अब आपकी बॉल इस पे स्ट्राइक करी, तो बॉल ने एक फोर्स लगाई F1, रॉड ने वापस एक फोर्स लगाई F2, और इनके टक्कर होते ही हिंज ने एक रिएक्शन फोर्स भी लगाई। अब मेरे को सबसे पहली बात तो ये होती है, क्योंकि बॉल और रॉड की टक्कर म्यूचुअल इंपैक्ट है, तो F2 और F1 तो बराबर है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, which says that for every action there is an equal and opposite reaction. तो बॉल और रॉड की टक्कर पे जो फोर्सेस है वो तो एक दूसरे के बराबर है, और ओ पॉइंट के अबाउट अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो F1 इंटू आर तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, और F2 इंटू आर क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा। और चूंकि F1 और F2 बराबर हैं, ये दोनों मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ओ पॉइंट के अबाउट। तो अब F2 और F1 के कारण तो कोई टॉर्क बन ही नहीं रहा। अब एक रह गई रिएक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग थ्रू पॉइंट ओ। नाउ व्हाट इज द टॉर्क और मोमेंट ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स अबाउट ओ? सर जीरो। जीरो, क्योंकि ये ओ पॉइंट से ही गुजर रहा है, तो इस रिएक्शन का भी टॉर्क नहीं लगेगा सिस्टम पे। तो अब कुल मिलाकर के सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो गया आपका? जीरो। It is zero. And therefore, although conservation of linear momentum was not applicable, but for the same situation, conservation of angular momentum will be applicable. अब आपको ये पूरी कहानी पता लग गई, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आपको ये कुछ नहीं बोलना। मैं वापस से बताता हूं कि आप क्या करोगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपको ये भी नहीं बोलना कि लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल नहीं है। आपने ये पहली इक्वेशन बना ली, अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए यू सिंपली से अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये अभी तक जितनी अपन ने बातें की ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की थी। अब अपन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। विच सेज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इम्पैक्ट, यानी कि इनिशियल, must be equal to angular momentum of the system after impact or final, which is the same as saying I1 omega 1 plus I2 omega 2। ये चीज तो आपकी इनिशियल टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो गई, ये बॉल की, ये रॉड की इनिशियल, इक्वल टू I1 W1 प्लस I2 W2, ये बॉल की, ये रॉड की फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो अब अपने को बस ये अप्लाई करना है। अच्छा, अब अपने पास चूंकि अभी आज तो टाइम है नहीं, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको अब अपन नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अब इसमें इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सारी चीजें आएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, इस एक क्वेश्चन को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो आपके काइनेटिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं एक साथ। कहां पर आपको इनर्शिया की प्रॉब्लम्स आती है, कहां पर एंगुलर और लीनियर एक साथ आता है, ये सारी चीजें आपके एक साथ फंडे खुल जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और हो सकता है कि इस टाइप की एक प्रॉब्लम आपके आरटीयू में आ भी सकती है। तो अपन इसको अब अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।
लेकिन आज जितना कुछ पढ़ाया, कैन यू प्लीज कंफर्म बैक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई एंड यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड? यस सर। Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना सारा मामला आपको? Yes, sir. ठीक है, चलो, आई विल टेक योर अटेंडेंस